Hi, good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. So, what's up? Good evening, sir. Very good evening. So your voice is very feeble. If you can increase the sound of your microphone. Am I not audible? Too feeble, sir. Let me, because here it's. Hello. Am I audible now to others? Hello, sir. Yeah. Hi. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. All right. All right, guys. So, what's up? क्या क्या किया आप लोगों ने इतने दिनों में? Almost a week's time. All pending things, everything has been done. All right, guys. So we will not waste much of your time, and then we will push on to, as I said, like from today we'll be starting little crucial topic, which is search engine optimization. So I'll take you through first through the presentation, and then followed by some task sheets, and then I'll ask you guys to fill it up based on your keyword research that you guys have already done so far. So let me mute few of the people where I feel, yeah. All right, so guys. So let me share my screen, and then from there we will discuss. Is this screen visible to you guys? Yes, sir. All right. So the moment we are talking about search engine optimization, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को कुछ पता है, कुछ आइडेंटिफाई किया है, कुछ समझ में आ रहा है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो SEO होता है. SEO इज फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? सो हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉरमोस्ट हम देखते हैं कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. And since we have discussed most of the things, so we will collate and then we will take things in this direction. Okay. Now let's understand any advertisement which is happening on online platform or offline platform. They works in an average, they works in and around these four components. Whatever they are advertising, a company is advertising, their interest is, first level interest is, they want to grab attention. First, anything that they are publishing, either online medium or offline. ऑफलाइन किसको कहते हैं? वो प्रिंट मीडिया हो, आउटडोर एडवर्टीजमेंट हो, या फिर कोई होर्डिंग है, बिलबोर्ड है, जो भी है, या फिर ऑनलाइन पे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई वो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करें. सो वंस दे ग्रैब अटेंशन, देन व्हाट इज द नेक्स्ट? दे वांट टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ एंड यूजर्स सो दैट वो रिस्पॉन्ड करें. जो भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे लोगों के इंटरेस्ट को जनरेट करना. और इंटरेस्ट जब नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, बिकॉज वंस द यूजर, जो कि ऑडियंस है, जो कि बायर है, वो ये समझता है कि हाँ ये उसके इंटरेस्ट की चीज है, तब फिर डिजायर में वो कन्वर्ट होता है. इंटरेस्ट और डिजायर में फर्क क्या है? इंटरेस्ट, जैसे हम और आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक बहुत अच्छा मकान हो, ठीक है, लेकिन हमारा डिजायर हैज टू बी बैक्ड बाय बाइंग पावर, फॉलोड बाय जो बाइंग पावर उसके साथ होना चाहिए, और टाइम फ्रेम. जब ये दो चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो डिजायर के फॉर्मेट में वो वर्कआउट होता है. एंड लास्ट, जब वो चीज परचेज कर ली जाती है, तो फिर उसके अंदर ये समझा जाता है कि वो एक्शन है. ठीक है. तो ये चार एक्टिविटी के अंदर ही हमें सारे के सारे काम को करना होता है. ओके.
तो हम कोई भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट प्लेस करें, हम कोई भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एक्टिविटी करें या ऑफलाइन एक्टिविटी करें, वो हमारे लिए बहुत ही आसान सी चीज है कि हमको इन चार पैरामीटर्स के ऊपर ही हमें वर्कआउट करना होता है। One minute guys, just a minute. Yeah, sorry guys. Right. So whatever online or offline advertisement, whatever we do, these are the 4 activities which is expected from any activity that is being done online or offline. फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग है कि जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, ग्राफिक्स बना रहे हो, क्रिएटिव डाल रहे हो, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द यूजर्स. It gets converted into interest, then followed by desire, and then finally action. Action is what? Final shopping. Okay, so now let's understand overall components of digital marketing. These are the components of digital marketing, and we have discussed almost all 5 components of digital marketing except search engine optimization. So I'll be moving on to creative. We have already discussed about creative services like Canva and other tools. We have already discussed. You have already created pages on Wix, Google My Business. Then we have discussed about Google paid ads, social media marketing, lead generation activities. So all these things we have already discussed. Now, last which is left over is search engine optimization, and which is very crucial. So we are discussing it now. Okay, so let's see. Anything that you will be searching on Google. So when we are saying what is definition of search engine optimization, the moment we say, who is this gentleman whose voice is always coming from the background? Then I request you guys to please keep yourself on mute format. All right. Okay, so the definition of search engine optimization is whatever you do on your website to make your website rank in Google search engine, we call it search engine optimization. Okay, so Google is what? Google is search engine. To optimize the ranking in Google, यानी continuously if you keep on doing some activity or the other to make sure that your website starts performing higher and higher in Google, we call it search engine optimization. जब भी आप कोई भी word Google में search करते हो, whenever you search anything in the Google, इस तरह का आउटकम आपको निकल के आता है, जहां पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप कोई चीज सर्च करेंगे तो वहां पे ऊपर में एड्स लिख के आता है, जो मैंने यहाँ पे एक कलर में मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिंक के अंदर आपको यहाँ पे डाल रखा है, which actually it means these are the results from search engine these are the results from paid campaign on Google. उसके नीचे जो चीजें आ रही हैं ये क्या है? ये हमारे ऑर्गेनिक अप्रोच से है, इन द सेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए से है. तो जैसे आप देखोगे कि ये स्क्रीन आता है और फिर उसके बाद हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, जैसे हमारा एक कीवर्ड है जिसको हम लिख रहे हैं क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग. ठीक है, तो जैसे हमने क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग लिखा तो ये हमारा आउटकम आएगा. ये हमारा आउटकम आएगा. ओके, अब इसके बाद क्या करने का है हम देखेंगे इसको. तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा पेड कैंपेन के थ्रू से है, जिसको आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है
ये पेड कैंपेन की वजह से। दूसरा जो सेक्शन आ रहा है वो जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा ऑर्गेनिक यानी एसईओ के जरिए से वो आ रहा है। ओके, सो जिसको हम नेचुरल लिस्टिंग भी करते हैं और हम ऑर्गेनिक लिस्टिंग भी कहते हैं, जहां की पेड को हम पेड लिस्टिंग्स ही, पेड सर्च रिजल्ट्स ही हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे कि अगर आप कोई भी चीज गूगल पे आप सर्च करते हो, कुछ भी करते हो, तो जो आउटकम निकल के आता है वो अटेंशन जो होता है वो इन्वर्टेड एल फॉर्मेट में होता है, यानी हमारा ज्यादातर अटेंशन आप यहां पे देखेंगे आप ये जो सेक्शन है जिसको कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, आप ये सेक्शन देखिएगा, ये वो सेक्शन है जो टाइप टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर का सेक्शन रहता है, वहां पे सबसे ज्यादा हमारा अटेंशन ग्रैब होता है, राइट। तो ये अटेंशन जो ग्रैब होता है इसके बेसिस पे ही हम काम करते हैं, यानी हायर योर रैंकिंग इज ऑन द पेज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आप अच्छे से काम कर सकेंगे, राइट। योर वेबसाइट विल स्टार्ट रैंकिंग मच बेटर। ओके, उसी तरह से जब हम इस चीज को और हम देखते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे आप देखोगे नीचे की तरफ आते जाएंगे, आपका फोकस ऑफ रीडिंग द कंटेंट विल बी गोइंग लिटिल लेसर। तो अब यहाँ पे हमको क्या होगा, हमको यहीं पे हमको ये कोशिश करना है कि हमारी वेबसाइट जितना पेज के ऊपर की तरफ आता चला जाएगा वो हमारे लिए बेहतर होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख रहे हैं कि भाई हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है कि एसईओ ज्यादा रैंकिंग, एसईओ ज्यादा ट्रैफिक पुल करता है या पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या है, गूगल के ऊपर जो पेड कैंपेन होता है उसको पे पर क्लिक कहते हैं। ठीक है, या तो एसईओ ज्यादा ट्रैफिक पुल करता है या पे पर क्लिक। तो आंसर है कि अगर आपकी वेबसाइट आपके एफर्ट्स के जरिए से गूगल के ऊपर अच्छा रैंक परफॉर्म करना शुरू कर गया, देन SEO विल ब्रिंग मोर ट्रैफिक देन पे पर क्लिक। रीजन इज एड आपका तभी तक काम करेगा जब तक कि आपके पास बजट है और आप बजट पे प्ले कर रहे हो, टिल दैट टाइम ओनली PPC विल वर्क। नाउ SEO कब तक काम करेगा, SEO के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक करना शुरू कर गई और जब तक आप एफर्ट्स करते रहोगे आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक कर रही है, आपको ट्रैफिक मिलता रहेगा। वेयर एज गूगल एड्स, जिस दिन आपका बजट खत्म हो गया उस दिन आपका एड कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वो वहीं खत्म हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एडवांटेज फॉर SEO इज इट नेचुरल लिस्टिंग्स आर परसीव्ड टू बी नॉन बायस्ड। वहां पे किसी बायसनेस का कोई वो ये नहीं होता है कि भाई वहां पे क्या होता है कि भाई जो पेड कैंपेन में होता है यू पे मोर बजट, आप अपने बिड को ऑप्टिमाइज करो, हायर करो, ज्यादा पे करो, यू विल बी गेटिंग बेटर रैंकिंग। वेयर एज एसईओ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका कंटेंट अच्छा होगा, जिसका वेबसाइट प्रॉपर होगा वो वेबसाइट ऊपर रैंक करेगा। सो इट इज नॉन बाइज्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसईओ गिव्स बेटर आरओआई। एसईओ जो है बेटर आरओआई देता है। ROI किसको बोले, ROI बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। से फॉर एग्जांपल यू आर पुटिंग अप X अमाउंट, सो यू विल बी गेटिंग बेटर रिटर्न ऑन दैट। ठीक है, वेयर एज पेड कैंपेन में क्या होता है, समटाइम्स यू हैव टू पुट मोर मनी टू मेक श्योर दैट आपका एड हमेशा ऊपर की तरफ आता रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसईओ में कोई बिडिंग वॉर नहीं होता कि भाई मैंने अगर 100 रुपए लगाया अपने कीवर्ड के ऊपर, कोई 120 रुपए लगाएगा तो उसका कीवर्ड ऊपर आ जाएगा, उसकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। एसईओ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वहां पे कोई बिडिंग वॉर नहीं होता कि भाई आप जितना ज्यादा पे करोगे गूगल को आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। एसईओ में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू क्रिएट ऑनलाइन ब्रांड। आपको क्या करता है, ये ऑनलाइन ब्रांड बनाने में आपको हेल्प करता है। एसईओ ऑलवेज गिव्स सपोर्ट्स योर ब्रांड टू बी मोर विजिबल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस रहे कि एसईओ क्या है। एसईओ पुल्स मोर ट्रैफिक देन पीपीसी। सो एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इफ योर वेबसाइट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग इन गूगल ऑर्गेनिक वे में, नेचुरल लिस्टिंग में, तो आपको पीपीसी से ज्यादा ट्रैफिक वहां पे बिल्डअप होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज it's natural, it's non-biased. Third important point is it gives more ROI, better ROI. आप
एक्स अमाउंट स्पेंड करोगे, एक्स एफर्ट डालोगे, आपको उससे आपको बेहतर और बेटर रिजल्ट आपको निकल के आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स नॉट हैविंग नो बिडिंग वॉर, कोई बिडिंग वॉर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्लिक फ्रॉड नहीं होता, और इट हेल्प्स टू क्रिएट ऑनलाइन ब्रांड। Now let's understand the concept how to estimate a baseline of SEO budget। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है, because you guys may be joining or may be working as a marketing associate for various companies। ठीक है, आप लोग काम कर रहे होंगे, किसी जगह काम कर रहे होंगे, अगर आपसे आपका मैनेजमेंट ये पूछता है कि भाई हमें SEO करवाना है, या आप सजेस्ट कर रहे हो कि आपको SEO करवाना चाहिए, तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई अप्रॉक्सीमेटली बजट क्या आएगा इसका। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका बजट का क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहली चीज हमको ये समझना होगा कि कीवर्ड कितने तरह के होते हैं। आप ये देखेंगे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखिए कि हम कीवर्ड किस तरह से हम डाल सकते हैं। ठीक है, जेनरिक कीवर्ड किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, ये क्या हुआ? ये जेनरिक कीवर्ड हुआ। अगर इसके साथ हम कीवर्ड लगा दिए टॉप इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, एक ये हो गया, तो ये क्या हुआ? एक्सटेंशन, यानी ये वेरिएशन हमने क्रिएट किया। तो वेरिएशन क्या हो सकता है? टॉप हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, और भी जो भी आपके समझ में आए, टॉप 10 हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या आएगा? इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन हैदराबाद। ठीक है, उसी तरह से इन कोलकाता, इन चेन्नई। तो इस तरह का जो ये जो सिटी नेम जब हम लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रीजनल कीवर्ड। इसको क्या कहते हैं? रीजनल कीवर्ड। ओके, ये ऊपर के जो कीवर्ड्स हैं ये जेनरिक कीवर्ड्स हो गए। यहां जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ये क्या हो गया? रीजनल कीवर्ड्स। अगर हम यहीं पे हैदराबाद या कोलकाता का कोई स्पेसिफिक लोकेशन हम लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन अलीपुर कोलकाता, फॉर एग्जाम्पल, तो अलीपुर क्या है? इट्स अ लोकेशन, इट्स अ स्मॉल लोकेशन इन होल कोलकाता। तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं हम हाइपर लोकल कीवर्ड। इसको क्या कहते हैं? हाइपर लोकल या हाइपर रीजनल। तो अब हमारे सामने तीन तरह के कीवर्ड्स हैं। एक जेनरिक कीवर्ड है जो कि इस तरह का कीवर्ड कहलाएगा। दूसरा रीजनल कीवर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हम सिटी नेम डालते हैं। तीसरा हाइपर लोकल या हाइपर रीजनल कीवर्ड आ जाता है, जहां कि हम सिटी का स्पेसिफिक लोकेशन हम डालते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपने इस तरह के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रखा है तो एसईओ का बजट अलग अलग होता है। एवरेजली इस तरह का अगर आप कीवर्ड लेके चल रहे हो, जैसे जेनरिक कीवर्ड कहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी हो गया, या उसी तरह से हो सकता है कि वेब डेवलपमेंट कंपनी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो सकता है। तो इस तरह का जो जेनरिक कीवर्ड है, उस तरह के कीवर्ड से अगर आप रैंकिंग लेके आना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो आता है, अब चूंकि गूगल तो चार्ज नहीं करता, तो कंपनीज चार्ज करती हैं। कंपनीज किस बेसिस पे चार्ज करती हैं? कीवर्ड में उसको टॉप में लाने के लिए जो एफर्ट्स लगता है उसके लिए चार्ज करती हैं कंपनीज। ओके, तो आप ये समझिए कि ये जो कंपनीज हैं, ये जो इस तरह के कीवर्ड्स हैं, इस तरह के कीवर्ड को, जेनरिक कीवर्ड को अगर हमको गूगल के टॉप 10 में लेके आना है तो इसके लिए कम से कम आपको 6 मंथ्स का टाइम लग जाता है। ये थोड़ा बहुत कम भी लगता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी लग सकता है। यानी आउट ऑफ 10 कीवर्ड्स दैट यू हैव चूजन, 5 और 6 में स्टार्ट रैंकिंग इन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल इन 6 मंथ्स टाइम। कुछ सेकंड पेज पे होगा,
कुछ कहीं और हो सकता है, बट मोस्टली जेनरिक कीवर्ड इट टेक्स लॉन्गर टाइम, ठीक है, टू कम ऑन द टॉप पेज ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। अब इस तरह के कीवर्ड को जब आप ये कर रहे हैं तो आपको बजट कितना लगाना होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह के कीवर्ड्स के लिए हमको बजटिंग जो करना होता है वो इस तरह से मान के चलिए कि ₹1000 पर कीवर्ड पर मंथ। इन द सेंस आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, वेबसाइट के ऊपर चेंजेस करने होते हैं, और फिर उसके बाद कंटिन्यूस आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सो रफली इट विल कॉस्ट अराउंड दैट। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि अगर आपकी कंपनी या आपको कोई क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे 10 कीवर्ड से मेरी वेबसाइट को टॉप में लेके आना है और उसके इस तरह से कीवर्ड्स होंगे, सो व्हाट यू कैन से रफली इफ दे आर आस्किंग फॉर 10 कीवर्ड्स, तो आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज पर मंथ आपका बजट आएगा इफ दे आर टॉकिंग अबाउट जेनरिक कीवर्ड्स। बट इफ दे आर टॉकिंग अबाउट रीजनल कीवर्ड, जैसे सिटी नेम आ गया, स्टेट नेम आ गया, सिटी नेम आ गया, इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स होंगे, तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। और इसका कॉस्ट, आप इसका जो एफर्ट का जो कॉस्ट आ जाता है या एफर्ट्स लगाएंगे जो आप, उसके अंदर ये अगर देखें तो ये आपको 600 to 750 रुपीज पर कीवर्ड के हिसाब से आपको एफर्ट्स का कॉस्ट आ सकता है। गूगल इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह के कीवर्ड को आप ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हो, विच इज सब लोकेशन ऑफ अ सिटी, वो भी है और सिटी का भी लोकेशन है, बिकॉज हर चीज के लिए अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल यू आर रनिंग ए बेकरी शॉप, ठीक है। अब बेकरी का रेडियस कितना किलोमीटर तक का होता है? कोई आदमी केक का ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, वो 20 किलोमीटर दूर ऑर्डर प्लेस नहीं करता, वो अपने रीजन में, अपने एरिया के अंदर बिल्कुल ही जो बेकरी होता है, बिल्कुल नजदीक का बेकरी होता है, वहां जाके ऑर्डर प्लेस करता है, सो दैट ही कैन गो एंड पिक। और in case it has to be delivered at doorstep, then also it should be in such a format कि ज्यादा दूर ना हो, ताकि आने में वो डिस्टर्ब ना हो, वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के बिजनेसेस के लिए आपको जब आप ऑप्टिमाइज करते हो, एसईओ करते हो, तो ये आप मान के चलो कि इसका कॉस्ट और कम हो जाता है, और इसका कॉस्ट आप मान के चलो कि मे बी 400 रुपीज टू 500 रुपीज तक आ जाता है, ओके। I'm just giving an example, no hard and fast rule. I'm just giving an example so that आप ये समझ सको कि estimate कैसे बनाया जाता है, okay? तो अब मान ले कि ओवरऑल आपने 10 कीवर्ड्स चूज किया एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, आपने सजेस्ट किया, तो आप क्या करोगे? 2-3 जेनरिक कीवर्ड आप चूज करोगे, 2-3 रीजनल कीवर्ड चूज करोगे, और 2-3 हाइपर रीजनल कीवर्ड चूज करोगे। ओवरऑल आपको मिक्स एंड मैच बनाना है कि 10 कीवर्ड में मिक्स एंड मैच हर तरह के कीवर्ड्स आ जाएंगे। And then when you start performing, when you start estimating, तो क्या होगा कि यहाँ पे 3000 का कॉस्ट है, यहाँ पे 2000 का कॉस्ट है, यहाँ पे 1500 का कॉस्ट आ गया, तो ओवरऑल आपको 7500 या 7000 रुपीज में 10 कीवर्ड्स का बजट आ जाता है। सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट काइंड ऑफ, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ बजटिंग, या कोई आपसे कहता है कि भाई तुमने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है, मेरे लिए एसईओ कर दो, तो वो आपसे पूछेगा कि इसका क्या कॉस्ट होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल लॉजिक कि किस हिसाब से आपको करना है, बट दीज आर नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, सो दैट इट वाज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन पर्पस। सो हाउ टू एस्टिमेट बेसलाइन ऑफ एसईओ बजट। तो बेसलाइन ऑफ एसईओ बजट कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है। नेक्स्ट, क्या हमको एसईओ पहले करना चाहिए या पीपीसी पे पहले स्पेंड करना चाहिए? ये अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई बिजनेस ओनर करता है, या आप ही अपने बिजनेस के लिए क्वेश्चन करते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर रही है, क्योंकि हम फ्रेशली काम शुरू कर रहे हैं और हमारी रैंकिंग नहीं है अभी गूगल में, तो हमको पीपीसी का यानी गूगल के पेड ऐड का सपोर्ट लेना पड़ेगा, because in that scenario your website will start ranking, some traffic will start getting generated, आपके गूगल से कुछ इंक्वायरीज जनरेशन शुरू हो जाएगा। so if your website is quite raw and fresh, then of course you should spend some amount on Google ad। PPC किसको कहते हैं? PPC Google ad को कह रहे हैं हम। and simultaneously we have to start working on search engine optimization, because आज नहीं तो कल हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, सो दैट हमारी वेबसाइट स्लोली ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी।
जब हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, गूगल के ऐड का बजट कम कर लेंगे, एसईओ के परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो ये हमको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू सी एसईओ रिजल्ट्स। जैसे मैंने लास्ट स्क्रीन में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जेनरिक कीवर्ड आपको कम से कम आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लोकल कीवर्ड या रीजनल कीवर्ड जो है वो थोड़ा कम टाइम लेता है, क्योंकि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है, लंबा कीवर्ड हो जाता है। और जो हाइपर लोकल कीवर्ड्स हैं या वेरी रीजनल वेरी लोकल कीवर्ड हैं, यानी सिटी के लोकेशन वाला नाम है, जैसे अलीपुर मैंने डाला, ठीक है, उस तरह के कीवर्ड शायद आपके 1 से 2 महीने में भी परफॉर्म करने लगेंगे। सो शॉर्टर द कीवर्ड्स आर, या जिसका कंपटीशन टफ है, जिसके अंदर सर्च रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके सर्च वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, तो उस तरह के कीवर्ड्स आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा परफॉर्म करने में। जो कम सर्च वॉल्यूम वाले होंगे वो आसानी से परफॉर्म करेंगे। रीजनल एंड हाइपर लोकल कीवर्ड्स परफॉर्म्स मच ईजियर देन जनरल कीवर्ड्स। तो ये आपको टाइम फ्रेम से रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स। अब कीवर्ड रिसर्च क्या है, राइट? ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन कीवर्ड रिसर्च, गूगल के टूल में जाके वहां पे कीवर्ड डाल के वो सारी चीजें करके आप लोग कर चुके हो। सो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं कि भाई कैसे हम गूगल के अंदर कीवर्ड रिसर्च करते हैं, बट यू विल गेट टू नो दैट विच कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, वो कौन सा कीवर्ड है, गूगल सजेस्ट कैसे कर रहा है, राइट? सो गूगल सजेशन टूल के अंदर जाके आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, राइट? सो क्या होता है, गूगल कुछ सजेस्ट करता है, उसका सर्च वॉल्यूम निकल के आता है। ये इस तरह से भी रहता है, आपको ऐड के ऑप्शन, प्लस के ऑप्शन आते हैं या ऐड के ऑप्शन आते हैं, यू चूज इट एंड देन उस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, सो मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बिकॉज हम लोगों ने एनफ टाइम इसके ऊपर हम लोगों ने स्पेंड किया है पहले, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हमको और क्या क्या चीजें देखना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। यानी अगर आपको कोई वेबसाइट प्रमोट करना है तो आपको अपने कंपटीशन के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। उस कंपटीशन को पता करने के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमको आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करने चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि भाई गूगल उस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या क्वालिटी स्कोर दे रहा है। ये उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा पास्ट में भी लेके इसलिए जाता हूं और इसलिए पता, ताकि आप जब ये सब्जेक्ट नॉलेज एक्वायर कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो पेज रैंक एक ऐसा टूल है जो कि गूगल ने कई साल पहले, यानी 8-10 साल पहले जो है गूगल ने बनाया था और काफी लंबे टाइम तक ये चला। अब ये डिस्कार्ड कर दिया गया है गूगल की वजह से, गूगल की तरफ से, बट स्टिल ये समझना है कि गूगल हर वेबसाइट को 0 से लेकर 10 के बीच में कुछ रेटिंग देता है बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। आपकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है तो आपका पेज रैंक जो है वो 0 होगा। आप अच्छा है, जैसे गूगल की, जैसे एप्पल की वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, विप्रो की वेबसाइट हो सकती है, राइट, टीसीएस की वेबसाइट हो सकती है। तो इन वेबसाइट्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं, बट हायर द पेज रैंक इज, गूगल अगर इसका स्कोर हायर देता है तो इसका मतलब वो वेबसाइट्स अच्छे हैं। सो ये एक चीज है। दूसरा हमको ये देखना है कि कितने लिंक्स उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे पेज रैंक है, लिंक और पेज इंडेक्स है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे कि जैसे ही हम जाएंगे तो गूगल इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर गूगल टूल बार आया करता था, वहां पे पेज रैंक का एक ऑप्शन आता था, अब नहीं है वो। सो अगर अब आप जाके गूगल टूल बार इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू एंड मी आर नॉट यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर एनीमोर, वी आर यूजिंग क्रोम, और ये टूल क्रोम पे वर्कआउट नहीं होता, राइट? सो देयर इज नो पॉइंट दैट यू गो एंड इन्वेस्टिगेट इट, बट स्टिल आई एम गिविंग यू ओवरव्यू। तो ये पेज रैंक आता है, जैसे आप देख रहे हो कि ग्रीन है, तो more the greener is, it means that higher the quality of this particular website. So first important चीज जो हमको चेक करना होता था पहले वो पेज रैंक है। अब ये चला गया है तो इसलिए हम पेज रैंक नहीं चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड कितने वेबसाइट्स गूगल में लिस्टेड है, इन द सेंस हाउ मेनी वेबसाइट्स हैव लिंक्ड योर वेबसाइट ऑन देयर वेबसाइट। यानी
कितने वेबसाइट्स ने आपके वेबसाइट को लाइक करके आपके वेबसाइट के कंटेंट का या लिंक को अपनी वेबसाइट पे प्लेस किया है। जैसे आप देखेंगे कोई बिजनेस डायरेक्टरी होता है, आप देखेंगे कि कोई क्लासिफाइड साइट्स होते हैं, आप ये भी देखेंगे कि कोई इस तरह की साइट्स होती है जहां कंपनीज लिस्टिंग होती हैं। तो वो सारे उस तरह की चीजों को चेक करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कोड आ रहा है जो कि इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि अगर आप एक वेबसाइट का लिंक अगर आप गूगल में डाल रहे हैं, इन द सेंस, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कोड, ये आपको सर्च स्ट्रिंग जहां पे आप गूगल में कीवर्ड डालते हो, ठीक है, वहां पे आपको डाल के क्या डालना पड़ेगा, लिंक एंड देन कोलन देन वेबसाइट यूआरएल। जो भी कंपनी का आपको लिंक पॉपुलैरिटी चेक करना है उसका यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप, तो क्या आएगा, makeMyTrip.com, इस तरह से। अब जब आप ये सर्च करेंगे तो क्या आएगा, गूगल यहाँ पे दिखा रहा है कि 365 वेबसाइट्स ने मेक माई ट्रिप को लिंक कर रखा है। इसका मतलब इसकी पॉपुलैरिटी एक तरह से कहिए 365 है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट यस इट इज अ फैक्ट, बट जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। उसी तरह से अगर आप यात्रा.com, मेक माई ट्रिप का क्या है, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर क्या है, यात्रा.com, तो मेक माई ट्रिप का अलग अलग होगा, यात्रा का अलग होगा। तो हम ये देखेंगे इसी कोड से कि क्या यात्रा का कितना है, मेक माई ट्रिप का कितना है, इजी ट्रिप का कितना है, किसी और वेबसाइट्स का कितना है, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो वेबसाइट कितना पॉपुलर है, ठीक है। तो दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्गर योर कंपटीशन इज। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना होता है वो ये करना है कि आपको कितने पेजेस उसके वेबसाइट गूगल में इंडेक्स्ड हैं। इन द सेंस, अगर मेक माई ट्रिप वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के अंदर अगर 500 पेज हैं या 1000 पेजेस हैं, तो क्या सारे के सारे पेजेस गूगल में लिस्टेड हैं या नहीं हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दूसरा सर्च स्ट्रिंग, दूसरा सर्च का कोड आपको सर्च टूल बार में डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या डालना है, साइट कोलन, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका भी सर्च करना है वहां पे जाके मेक माई ट्रिप सर्च करेंगे। आप जिस कॉम्पिटिटर का एनालाइज करना चाहते हैं, आप जिस कंपनी के बारे में उसकी वेबसाइट अवेलेबल हो और एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से देना पड़ेगा। साइट से क्या पता चलता है, उस वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल में इंडेक्स्ड हैं, गूगल में कितने पेजेस की लिस्टिंग्स आ रही हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे 10 पेज है या आपकी कंपनी के वेबसाइट पे 100 पेजेस हैं और आपने ये सर्च क्वेरी गूगल में डाला है और यहाँ पे आपको रिजल्ट सिर्फ आपको 50 आ रहे हैं, 100 पेजेस हैं लेकिन रिजल्ट 50 आ रहे हैं, इसका मतलब 50 पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड इन गूगल। तो ये आपको फिर वहां पर से हमको काम करना शुरू करना पड़ता है, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए 3 में से आप अभी के टाइम में समझ लीजिए कि 2 इंपॉर्टेंट चीज है। एक, लिंक आइडेंटिफाई करना कि कितने वेबसाइट्स ने आपके प्राइमरी वेबसाइट को प्रमोट किया है या उसको लिंक दिया है, उसका लिस्टिंग अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। दूसरा, वो वेबसाइट कितनी बार और कितने पेजेस उस वेबसाइट के गूगल में इंडेक्स्ड हैं, ओके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये एक फैक्टर है। उसके बाद आता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ। ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं, वो सारे चेंजेस आप अपनी वेबसाइट में जो करते हो, वो कंटेंट फॉर्मेट में होता है, कीवर्ड फॉर्मेट में होता है, डिजाइनिंग फॉर्मेट में होता है, वो जो भी फॉर्मेट में होता है, वो सारे चेंजेस जो आप अपनी वेबसाइट पे करते हो उसको ऑन पेज कहते हैं। एनी चेंजेस दैट यू आर मेकिंग ऑन योर वेबसाइट इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। और जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है तो उसको प्रमोट करने के लिए जहां जहां आप सबमिशन करते हो, लिस्टिंग करते हो, उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, बट मैं अभी टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया आपको। सो विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नाउ, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड कैन मेक और ब्रेक योर एसईओ कैंपेन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएं, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल आपके सामने एक वेबसाइट आई, उसका ये लेआउट है, ओके।
तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने पेज रैंक, हमने टाइटल, हमने पेज रैंक और लिंक और साइट के बारे में डिस्कस किया। अब जब कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, चाहे आप क्रोम पे ओपन करो या माइक्रोसॉफ्ट पे ओपन, एमएसएन पे ओपन करो, आपको ऊपर ग्रीन बार, ब्लू बार के अंदर कुछ डिटेलिंग आता है। उसको क्या कहते हैं, उसको मेटा टैग कहते हैं, उसको टाइटल टैग कहते हैं। ओके, और ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का, कि आपके टाइटल टैग, आपके पेज का टाइटल टैग प्रॉपर होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चरिंग क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं टर्मिनोलॉजी से आप लोगों को अवेयर करा रहा हूं। तो ये ऑन पेज का फैक्टर है। अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे आप देखिए कि दो चीजें हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ सबसे पहला कंपोनेंट आता है टाइटल टैग, यानी आपकी वेबसाइट का एक टाइटल होता है जो कि गूगल रीड करता है और उसके बाद उसी के बेसिस पे आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देता है। जब आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं, एक कीवर्ड जैसे इंटीरियर डेकोरेटर इन हैदराबाद करके आपने सर्च किया, अब जो ग्रीन कलर में जो लिख के आता है, जिसपे आप क्लिक करते हो, जिससे वो वेबसाइट पे जाता है, उसको टाइटल टैग कहते हैं। उसके नीचे जो ग्रे कलर में दो लाइनर लिख के आता है, उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इन दोनों को मिला के मेटा टैग कहते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मिला के क्या कहते हैं, मेटा टैग कहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो एसईओ कंपोनेंट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का है, वो है टाइटल एंड मेटा टैग्स। चाहे तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज ये कैसे भी, ये पीपीटी भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों से और ये वीडियो भी आप लोगों के पास रहेगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइटल टैग। टाइटल टैग में क्या आ गया, टाइटल टैग जो सबसे ऊपर बैंड में लिख के आता है वो टाइटल टैग है, और ये गूगल के इंडेक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हेडर टैग्स आता है, जिसको कहते हैं एचएक्स टैग्स। तो फर्स्ट क्या आया, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस। तो मेटा टैग हुआ फर्स्ट। दूसरा हुआ हेडर टैग। हेडर टैग में क्या आता है, जो H1 से लेके H6, जिनको थोड़ा बहुत आप जब विक्स में बना रहे होंगे, कंटेंट बना रहे हैं या कोई हेडलाइंस ऐड करते हैं, तो जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो वहां पे आता है H1, H2, H3 हेडिंग, नॉर्मल टेक्स्ट जो भी आता है। तो उसमें से आप देखेंगे H1 से H6 तक ऑप्शंस रहते हैं। तो जो H1 टैग रहता है, जिस कंटेंट को आप H1 टैग यानी हेडर का टॉप नॉच टैग आप यूज करते हो, गूगल उसको वेटेज देता है। और गूगल ये सजेस्ट, मतलब गूगल सजेस्ट नहीं करता, बट हम लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि आप अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को H1 टैग में इनकॉर्पोरेट करो। अगर हम पीछे जाएं, इस पेज पे जाएं, तो आप देखिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट। तो ये वेबसाइट जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया है वो क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट से रिलेटेड ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ब्लू बैंड में भी क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट आ रहा है। जब हम आगे बढ़ेंगे और हेडर टैग के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए डेट सेटलमेंट यहाँ पे भी आ रहा है, फिर क्रेडिट कार्ड डेट आ रहा है। इन द सेंस जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, वो हम टाइटल में यूज कर रहे हैं, वो हम हेडर में यूज कर रहे हैं, हेडर टैग 1 में यूज कर रहे हैं। उसी तरह से हेडर टैग 2 में हम यूज कर रहे हैं, जहाँ की आप देखिएगा कि क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट और भी, तो इससे मिलता जुलता कीवर्ड वहां पे यूज कर रहे हैं। तो हेडर टैग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमको भी अपने पेजेस के अंदर हेडर टैग्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आता है कीवर्ड कंटेंट के अंदर कीवर्ड जो आप, जिससे आप अपनी वेबसाइट का रैंकिंग चाह रहे हैं, वो यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए कि ये एक वेबसाइट है, जैसा मैंने कहा कि डेट सेटलमेंट या फिर डेट कंसोलिडेशन है या डेट क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट से रिलेटेड है। तो अब आप देखिए जो कि हाईलाइटेड है बॉक्स के अंदर है डेट कंसोलिडेशन, क्रेडिट कार्ड डेट सेटलमेंट। तो डेट कंसोलिडेशन वर्ड कितनी बार यूज हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज आप जिस कीवर्ड से अपनी वेबसाइट चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करे, आपको वो पर्टिकुलर कीवर्ड अपने वेबसाइट के कंटेंट में मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ेगा। अब मल्टीपल टाइम्स का मतलब ये नहीं होता कि आप एक तरफ से भर दो उसको। उसका मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ अगर 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है, तो आप 2 बार उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करोगे। दूसरे 100 वर्ड्स पैराग्राफ में आप 2 बार और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम कीवर्ड 2 बार यूज करना है। अगर उसका वेरिएशन है, जैसे आप देखेंगे कि डेट कंसोलिडेशन और डेट सेटलमेंट, तो ये 2 वर्ड है, तो इन दोनों को 2-2 बार यूज कर सकते हैं हम। ओके, सिनोनिम को भी हम यूज कर सकते हैं या रिलेटेड कीवर्ड्स को भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। इट हेल्प्स
कि आपके कीवर्ड का डेंसिटी आपके कंटेंट में अच्छा हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, कीवर्ड डेंसिटी इन कंटेंट व्हाट यू आर यूजिंग ऑन योर वेबसाइट। फर्स्ट इज टाइटल, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रीजन इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एसईओ के ऑन पेज कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला है टाइटल यानी मेटा टैग्स, दूसरा है हेडर टैग्स H1, H2, H3, H6 हेडर टैग्स है, H1 और H2 टैग्स ही आप समझ के चलिए, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करना है। तीसरा है कीवर्ड डेंसिटी इन योर कंटेंट, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है फाइल नेम। जैसे आप देखेंगे और आपको याद होगा, जब हम विक्स के अंदर, विक्स में जब हम वेबसाइट बना रहे थे तो वहाँ पे होम वन और माई साइट करके आता था, तो मैं ये कह रहा था कि भाई उसका नाम, प्रॉपर नाम डालो। अगर पेंटिंग सॉल्यूशन है तो पेंटिंग सॉल्यूशन डालो, ठीक है, ब्यूटी सॉल्यूशन है तो ब्यूटी सॉल्यूशन डालो, माई वेबसाइट, माई नेम, मी, होम, इस टाइप से नहीं डालना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे भी कीवर्ड को यूज करना है वेबसाइट के नेम में। तो जैसे मान ले कि आपके वेबसाइट का नाम आया, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, डिजिटल मार्केटिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग डॉट विक्स साइट डॉट कॉम स्लैश, अब स्लैश के आगे जो डाल रहे हैं वहां पे आप कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, सो दैट आपका वो पर्टिकुलर वेबसाइट गूगल के अंदर उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रैंक करे। तो आपको नेक्स्ट कहाँ पे कीवर्ड को यूज करना है, वेबसाइट के लिंक के नाम में यूज करना है। उसके बाद आता है कि गूगल इमेज को रीड नहीं करता, तो क्या करता है गूगल, या तो इमेज फाइल के नाम को रीड करता है या फिर उससे रिलेटेड एक कंपोनेंट आता है जिसको कहते हैं ऑल्ट टैग। क्या कहते हैं, इमेज के ऑल्टरनेट में एक टैग को यूज करना होता है जो कि गूगल उसको इंडेक्स करता है। जब आप किसी इमेज के पास माउस लेके जाएंगे तो इस तरह से आपको कुछ वर्ड्स लिखे हुए आते हैं। सो ये सारे वर्ड्स, इस सारी जगहों पे अगर हम कीवर्ड को यूज करते हैं, प्रॉपर कीवर्ड यूज करते हैं, तो चांसेस है हमारी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेगी। ओके, साइट मैप पे आने से पहले मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को एक बारी यहाँ पे ये आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने किस किस चीज को अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो उसके अंदर यहाँ पे मैं छोटे से इस सेक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ, मुमकिन है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमको क्या करना है, हमको जो इसका कंपोनेंट है उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आ गई, टाइटल और मेटा टैग्स। पहला आ गया टाइटल और मेटा टैग्स। दूसरा क्या आया, हेडर टैग्स, जो कि H1 to H6 होता है, बट वी हैव डिस्कस H1 एंड H2। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कीवर्ड इन कंटेंट। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस किया कीवर्ड इन कंटेंट। चौथा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, फाइल नेम, यानी वेबसाइट का जो नया जो एड ऑन पेजेस बना रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब मैंने कहा था कि आप लोग मल्टीपल पेजेस बनाइए, वहां पे आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग सिंगल पेज वेबसाइट मत बनाइए, मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनाइए। मल्टीपल पेजेस वेबसाइट में क्या होगा कि आप अपने फाइल के नेम दे सकते हैं, तो फाइल नेम ऑफ वेबसाइट, राइट। और पांचवा जो चीज आ जाता है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ऑल्ट टैग फॉर इमेजेस। ओके, तो ये 5 चीजें हैं जो कि आपको अपनी वेबसाइट के लिंक, आपको अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने हैं, सो दैट गूगल आपकी वेबसाइट को कुछ वेटेज दे और स्लोली आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करना शुरू करे। ओके, ठीक है, सो आई एम क्लियरिंग इट ऑफ, बट थिंग इज लाइक दिस विल बी नोटेड डाउन। ओके, तो 5 ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये आप कर लेते हैं तो नेक्स्ट आप जाते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई ना कोई साइट मैप हो। साइट मैप इसलिए होता है कि इन केस समवन इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर लिंक फ्रॉम टॉप नेविगेशन या बॉटम नेविगेशन से, तो साइट मैप पे जाके वो वहां पे देख सकता है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो साइट मैप इज बेसिकली अ पेज जहां पे आपकी वेबसाइट पे जितने पेजेस हैं वो सारे के सारे को लिस्टिंग्स आप कर सकते हैं।
इसका एडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। अगर नहीं है आपकी वेबसाइट पे साइट मैप तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट एडवांटेज ये है कि लोगों को नेविगेट करने में आसानी होती है। दूसरी चीज ये है कि गूगल अगर इस पेज को इंडेक्स करता है तो इसमें जितने पेजेस लिस्टेड होते हैं सबको गूगल इंडेक्स कर लेगा। तो इसलिए ये बेहतर है कि अगर आप अपनी वेबसाइट में एक साइट मैप भी अगर क्रिएट कर लेते हैं तो वो बेहतर रहता है, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सएमएल साइट मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और इसके लिए आपको टेक्निकल नो हाउ की जरूरत नहीं है। कुछ फ्री टूल्स अवेलेबल है, जब हम इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी वेबसाइट का लिंक सबमिट करिएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको sitemap.xml में कन्वर्ट कर देता है। अब ये sitemap.xml कहाँ सबमिट किया जाएगा? ये गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया जाता है, सो दैट आपकी वेबसाइट गूगल एक्सेस करे और लिंक करे और लिस्ट कर ले। ओके, बट ये आप नोट डाउन करिए, क्योंकि 5 चीजें हम लोगों ने वहां डिस्कस किया। 5, इससे पहले वाले स्लाइड के ऊपर मैंने यहाँ पे 5 चीजें डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे साइट मैप का एक पेज होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ये छठा है, दो इट इज ऑप्शनल बट इट इज इंपॉर्टेंट। 7th इज sitemap.xml। ये मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल की तरफ जा रहा हूं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल लास्ट में रखा, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट फ्लो हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो sitemap.xml हमको क्रिएट करके गूगल सर्च कंसोल के ऊपर हमको अपडेट करना होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट सो दैट गूगल आपकी वेबसाइट पे अपने आप आएगा इन लिंक्स के ऊपर, और वो फेच करके अपने आपकी वेबसाइट को अपनी डेटाबेस के अंदर लिस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब ये चीजें हो जाती हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा गूगल सर्च कंसोल, जिसको पहले गूगल वेबमास्टर कहा जाता था, ठीक है, तो आप अगर गूगल सर्च कंसोल सर्च करेंगे या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, कहीं अगर नहीं मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना, गूगल वेबमास्टर और गूगल सर्च कंसोल एक ही का दो नाम है। अब उसको सर्च कंसोल कहते हैं, उससे पहले उसको वेबमास्टर कहते थे। अब जब आप साइट मैप सबमिट कर देते हो, अपनी वेबसाइट सबमिट कर देते हो, तो गूगल आपको सारा का सारा समरी दे देता है कि वेब क्राउल में, यानी वेबसाइट को क्राउल करने में कोई दिक्कत हुई क्या, मोबाइल में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपकी वेबसाइट कोई मोबाइल पे देख रहा है तो कोई दिक्कत आ रही है क्या, HTTP पे कोई एरर है, इमेज लोड नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है, कोई भी ऑप्शन है, तो ये सारी चीजें आपको सर्च कंसोल आपको बता देता है, और आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स कब हुआ था ये भी बता देता है। तो इससे आपको फायदा क्या होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल डेटाबेस में कब गई थी लास्ट टाइम, ये समझ सकते हैं। ओके, देन यहां तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे, ये ब्लैंक स्क्रीन है, मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, सो दैट आप लोग इसको बार बार ध्यान रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना भी है, और इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमको नोट डाउन भी करना होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड सिलेक्शन है, कीवर्ड सिलेक्शन। तो कीवर्ड सिलेक्शन मैंने कहा कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर लिए। कहां से आइडेंटिफाई करेंगे? गूगल कीवर्ड प्लानर से करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि आप जाके ads.google.com में जाके वहां से ये करना है, तो वैसे आप करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? टाइटल एंड मेटा टैग्स। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आता है हेडर टैग्स, यानी यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया H1 एंड H2। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? कीवर्ड्स इन कंटेंट, जिसको हम कीवर्ड डेंसिटी की बात हमने कहा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? फाइल नेम, वेबसाइट का जो साइट है, जो लिंक है, उसका नाम, फाइल नेम ऑफ वेबसाइट। सिक्स्थ क्या है? ऑल्ट टैग। सेवेंथ क्या आया? साइट मैप। एट्थ sitemap.xml। ठीक है, यहां तक हम लोग आए। अब इसको कहां सबमिट करना है? गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल को कैसे क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, उसका मैं पूरा डिटेलिंग आप लोगों को दे दूंगा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? हम एनालिटिक्स कोड भी इंसर्ट करेंगे, गूगल एनालिटिक्स कोड।
इससे क्या एडवांटेज होता है? इससे एडवांटेज ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, क्या हुआ है, कब आए हैं, किस कीवर्ड से आए हैं, ये सारी चीजें पता चलती। तो ये सारी चीजों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहते हैं? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, इस सबको तो एक 10 चीजें हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, 10 चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो आई एम रिमूविंग इट एंड देन मूविंग इट टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये सारी चीजें होने के बाद ये हो गया कि भाई हमारी वेबसाइट, गूगल ने हमारी वेबसाइट को लिस्टिंग कर लिया, गूगल के डेटाबेस में हमारी वेबसाइट चली गई। अब क्या करना है? जैसे आप कोई दुकान खोलते हो, ऑफिस खोलते हो, कोई कंपनी खोलते हो, तो सारा का सारा ऑफिस सेटअप करने के बाद आप क्या करते हो? आप लोगों को पैम्पलेट बांटते हो, विजिटिंग कार्ड बांटते हो, लोगों को बताते हो, इनवाइट करते हो। तो ये सारा प्रोसेस जो आपकी वेबसाइट के प्रमोशन से रिलेटेड है, एंड विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, उस चीज को हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। यानी हम जितना ज्यादा, अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये था कि हम वेबसाइट पे जो जो चेंजेस कर रहे हैं उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब वेबसाइट आपकी चेंजेस के साथ सब कुछ रेडी हो गई, उसको अब हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रमोट करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। उसमें हमको क्या करना होगा? हमको बिजनेस से रिलेवेंट अपनी बिजनेस डायरेक्टरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसी तरह से येलो पेजेस, लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज हो सकती हैं, लोकल डायरेक्टरीज हो सकती हैं, येलो पेजेस हो सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रिंट मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूं। बिजनेस डायरेक्टरीज ऑनलाइन है, जैसे जस्ट डायल एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है, सुलेखा एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है, इंडिया मार्ट एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है। तो इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके आपको अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग्स क्रिएट करनी होगी जो फ्री की हैं। उसी तरह से येलो पेजेस सबमिशन हो गए, लोकल डायरेक्टरी सबमिशन होगा, डायरेक्टरी सबमिशन हो गया। इसके साथ साथ आता है लिंक पॉपुलैरिटी डेवलपमेंट के अंदर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरे वेबसाइट्स के ऑनर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट का वो लोग लिंक दें। जितने ज्यादा लिंकिंग वो लोग देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट पॉपुलर होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलर होगी उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करना शुरू करेगी। ये इस तरह से है कि यू आर actually giving weightage to some other website and some other website is in return giving weightage to your website। तो दोनों की वेबसाइट धीरे 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 करके पुश होना शुरू हो जाता है। ये लिंक स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंस वंस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया तो आपको डायरेक्टरी में सबमिट करना है, येलो पेजेस में सबमिट करना है, ठीक है, लोकल डायरेक्टरी, लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज में सबमिट करना है। उसी तरह से आपको अपने वेबसाइट से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखना है और आर्टिकल वेबसाइट, आर्टिकल प्रमोशन वेबसाइट्स के ऊपर आपको प्रमोट करना है, प्रेस रिलीजेस लिखना है, राइट। सो यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन कंटेंट एंड कंटेंट बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड गूगल लव्स कंटेंट। इसलिए हमको कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। वंस ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर हमको क्या करना है? हम अपने ब्लॉगर के ऊपर हम अपने पेजेस बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, या फिर हम आर्टिकल सबमिशन साइट जो है इजीन आर्टिकल है, आर्टिकल सिटी है, या और भी वेबसाइट्स हैं उस पर कर सकते हैं। आपने अगर कोई वीडियो बनाया हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि आप लोग वीडियो बना लो, कुछ ऐसे वीडियोस अगर बनाए हैं तो यूट्यूब पे आप चैनल क्रिएट करके वहाँ पे वीडियो को वायरल कर सकते हैं। और उसी तरह से आप कस्टमर के रिव्यूज को, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे इनसाइडर पेज पे है, येल्प पे है, या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे है, तो जैसे आप अमेजोन पे भी कुछ खरीदने जाते हो तो वहां पे भी आपको लिस्टिंग्स पता चलती हैं। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? अपने वेबसाइट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स पे जाके पोस्ट करना है और वहाँ पे अपनी वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट। ये सारे फ्री टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोगों को डिस्कस करना है, राइट। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ये है कि हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिस्कस किए इन डिटेल। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, बट इसके बारे में हम लोग और डिटेल बात करेंगे जब हम प्रैक्टिकली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, राइट। तो दिस इज अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट दिस इज थियरी अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम जो कल एक प्रैक्टिस करने वाले हैं वो एक मैं आपको एक फॉर्मेट भी बताऊंगा
कि किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स को किस फॉर्मेट में रखेंगे, फिर किस तरह से उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, मेटा टैग, H1 टैग, ये सब कैसे क्रिएट करना होता है, इसका मैं फॉर्मेट दे दूंगा और उसके ऊपर फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो ओवर टू यू गाइस। आज का टॉपिक बहुत ही टेक्निकल होगा, ये मैं समझता हूँ। कुछ लोगों के समझ में आया होगा, कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट। I'll make sure that all of you guys practice it and implement it. Over to you guys. कुछ क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज है जो कि आज मैंने बताया है उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, and then we can discuss rest of the things tomorrow. Over to you guys. मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दी है, नहीं दे रहा है? Are you guys able to listen my voice or it's not audible? Yes, sir. चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, कल प्रैक्टिस करवाऊंगा, परसों करवाऊंगा, सो दैट ये हमारा पूरा हो जाए, एंड देन we will move forward. Okay, all right guys, so see you tomorrow the same time. All right, take care, good night. Okay.